Almost we have completed all topics in now, but some important points are here. Just take a look on this. Cousin is never followed by brother and sister. हमें कभी ये नहीं बोला मेरा cousin brother है cousin sister नहीं, only cousin. Boarding कभी यूज नहीं होता है boarding house. Boarding house is proper use. These are most important for your common error in competitive exam. ऐसे हम लोग कहते हैं कि पुअर इज स्लैंग यूज द पुअर्स या द पुअर. वैकेशंस नहीं होते हैं, वैकेशन होते हैं, क्योंकि वैकेशन वन टर्म होता है. जब भी होगा वो वन टर्म होता है, तो उसमें वी शुड नॉट यूज वैकेशंस, ओनली वैकेशन. टिकट और टिकट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट? टिकट्स मीन्स नंबर ऑफ टिकट एंड टिकट मीन्स मोड ऑफ एंट्री. टिकट मीन्स मोड ऑफ एंट्री, टिकट्स मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेन, बस एंड फ्लाइट व्हाटएवर. लेकिन टिकट अगर टिकट मीन्स मोड ऑफ एंट्री, दैट मीन्स वो पास होता है, एंट्री पास होता है. वापस योर टिकट प्लीज. टिकट मीन्स डू यू हैव पास, हाउ टू एंटर. ओके. In the same way, innings is wrong, inning is correct use, but inning is always used in singular. हम लोग कहते हैं English teacher, physics teacher. No, the teacher of English, the teacher of physics. Direct English teacher, physics teacher, mathematics teacher, these are wrong. Okay. Agenda, you should not use agenda. Agenda यूज होती है, that means program of meeting, और ये भी हमेशा सिंगुलर होगी. ओके. रूम मीन्स हम लोग ट्रेन में जैसे ही जाते हैं तभी पे, तो वी कैन यूज देयर इज नो रूम मीन्स अनऑक्यूपाइड सीट. रूम मीन्स अनऑक्यूपाइड सीट. रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन है ही, बट अनऑक्यूपाइड सीट के लिए हम लोग रूम यूज करते हैं. ओके. विटनेस, एक कोर्ट में वर्ड होता है विटनेस एंड एविडेंस. हिंदी में विटनेस को हम लोग गवाह कहते हैं, और एविडेंस मीन्स साक्ष्य, जो उसका प्रूफ क्या है. और ऐसे ले सकते हैं कि विटनेस में होता है कि फिर, लेकिन आई विटनेस इज अ डिफरेंट थिंग, जो उसका आंखों देखा गवाह है. ओके. विटनेस नॉलेज ब्रॉट इन प्रूफ, जिसका एकदम प्रूफ है, दैट इज विटनेस. विटनेस एंड एविडेंस अननोन और डिस्प्यूटेड फैक्ट है. एविडेंस मतलब डिस्प्यूटेड फैक्ट, उस पर फिर बहुत सारी चर्चाएं होती है. दैट इज कॉल्ड एविडेंस. दिस इज द बिग डिफरेंस. विटनेस मीन्स knowledge brought in proof, and evidence means unknown or disputed fact. Family member is wrong use. The member of my family. Never use family member. Always use the member of my family. Good night is a parting salutation, and good evening is the meeting salutation. हम लोग evening to till night, midnight, we can use what? Good evening. अगर मिलते हैं तो good evening, और जब शाम में भी अगर जाते रहेंगे तो we must use good night, because good night is, always remember, good night is parting salutation and good evening is meeting salutation. Okay. Wages. Wages in singular form is punishment. Wages in singular form is punishment, and wages in plural form is charges for the labor. Mere daily wages pay means charges for the labor, and witness in and wages in singular form is punishment. Okay. We should always use double possessive, apostrophe s apostrophe s दो बार दे देते हैं ना, तो we must avoid this double possessive. Just like मेरे अंकल के दोस्त का बेटा, my uncle's friend's son. uncles में apostrophe s लगा, friends में apostrophe में अंकल का अंकल, uncles apostrophe s, friends में apostrophe s लगा. My uncle's friend's son, wrong, बिल्कुल गलत है. The son of my uncle's friend. Double possessive, double apostrophe we must avoid. Okay. In the same way, हम लोग कैसे कह सकते हैं, एक you can understand, apostrophe s यूज होता है जनरली लिविंग थिंग्स के लिए. apostrophe s लिविंग थिंग्स के लिए. द गर्ल्स लेग,
हैज बीन ब्रोकन, लड़की का पैर टूट गया. ओके, द लेग ऑफ द टेबल हैज बीन ब्रोकन. द एपोस्ट्रॉफी इज यूज हुआ किसके लिए? दैट इज फॉर लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए द लेग ऑफ द टेबल, वहां पे हमें एपोस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं है. You can understand. I think you can. Now, double meaning words you should keep in your mind. Habit, आदत. It belongs to the individual. हर आदमी की अपनी पर्सनल हैबिट होती है. Custom, it belongs to the society. कोई जो एक रूल रेगुलेशंस जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ऊपर से चला आ रहा है, जो एक मास को मानना है, जैसे सम वर्शिप, सम पूजा, जो कुछ होते हैं, दैट कम्स आवर इन कस्टम्स. ओके, हाउस मीन्स बिल्डिंग टू लिव इन. होम, पर्टिकुलर हाउस विच वन लिव. दिस इज माई होम एंड ये मेरा घर है. पर्टिकुलर एक आदमी का होम, एक आदमी का. एंड हाउस, द बिल्डिंग which one is living. Cause produces a result. Cause means cause. इसका cause क्या है? Cause में हमें result चाहिए. And reason explains a cause. इसका reason cause को explain करता है. और cause में क्या चाहिए? Result चाहिए. Cause किस चीज को explain करता है? Cause produces a result. And but reason explains a cause. Air, what we breathe. Wind, विंड में क्या होता है? विंड जो ब्लो करता है, जिससे पत्ते पेड़ पौधे हिलते हैं. मैन, द प्लूरल ऑफ मैन. पीपल, पर्सन. जेंटलमैन, मैन ऑफ कैरेक्टर. जेंटलमैन, महान आदमी जो लोग कहते हैं, मैन ऑफ कैरेक्टर. कॉस्ट, बहुत कंफ्यूजन है कॉस्ट में और प्राइस में. व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट अमाउंट पेड बाय द कस्टमर. कॉस्ट क्या होता है? जो कस्टमर पेमेंट करते हैं. और प्राइस क्या होता है? कॉस्ट अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर. कॉस्ट क्या होता है? जो अमाउंट शॉपकीपर पे करते हैं. बट प्राइस क्या होता है? जो कस्टमर, जो हम पे करेंगे शॉपकीपर को, दैट इज प्राइस. और जो शॉपकीपर पे करेगा होलसेलर को, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. कस्टमर, बायर ऑफ गुड्स, जो सामान खरीदता है. व्हाट वी आर कस्टमर. बट क्लाइंट्स, जो सर्विसेज लेते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं. डॉक्टर के क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर नहीं होंगे. ओके, नाउ सेड अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, जहां पे सन से छाया मिलती है, जो बना हुआ था. काउ लिव्स इन अ शेड. शैडो, जो दूर में कोई सामान है और उसकी जो परछाई पड़ती है, दैट इज मीन शैडो. इन हिंदी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड शैडो. ग्राउंड, आउटसाइड द हाउस. एंड फ्लोर, that is part of the room. Climate refers to regular pattern of weather. Regular pattern of weather, जो रेगुलर एक क्लाइमेट, या हम लोग कहते हैं शिमला का क्लाइमेट ठंडा है, दैट मोस्टली वहाँ पे ठंडा होता है, रेगुलर पैटर्न है. बट वेदर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम. आज का वेदर अच्छा नहीं है, तो सर्टेन प्लेस ऑफ टाइम, जब किसी दिन पर्टिकुलर वेदर डे टू डे चेंज होता है. अभी जैसे रेनी डे है, कल सनी डे होगा, दैट कम्स आफ्टर द वेदर. बट अभी ठंडा चल रहा है, इट्स समर, इट्स विंटर. ओके, एक्सीडेंट, अ मिसहैप और डिजास्टर. इंसिडेंट, इवेंट और अकरेंस, कोई घटना जो लाइफ में घट जाती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट. किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ तो वो उसका इंसिडेंट है. एक्सीडेंट, जो गिरते पड़ते हैं, दैट इज नोन एज एक्सीडेंट. लिबर्टी, फ्री फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट. लिबर्टी मतलब भी स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम मतलब भी स्वतंत्रता होता है. लेकिन लिबर्टी क्या है? जब जेल से लोग बाहर छूटते, कहीं कोई फंसा हुआ था, दैट इज नोन एज लिबर्टी. फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी ने आपको कैप्चर करके नहीं रखा है. इंडिपेंडेंस. These are the words. These are very confusing, so you have to keep in your mind, and we will now meet in next class. It may be day after tomorrow. Sunday would be the always business communication or personality development class. Thank you.